Namaskar, Sat Shri Akal. Welcome to EduEcon. I am Prachi Sachdev. In today's lecture, we will be discussing about cross-elasticity of demand. And with this, we will be ending the whole chapter. All the topics of this chapter have been posted. Please have a look, and also I'll be attaching a link below so that you can see all the important topics which has been taken over by me in this for this chapter. Okay, so we will be starting cross elasticity of demand. First of all, we need to understand what is cross elasticity of demand. Cross elasticity of demand basically shows the relationship between substitute goods and complementary goods. Now, what is substitute goods and what are complementary goods? If you have seen my previous videos, you would have been known. But okay, let's rewind. I'll give you a little glimpse in that. Substitute goods क्या होता है बच्चे? Substitute goods वो goods होता है which we can use in place of the other good. For an example, tea or coffee. If price of tea is increasing, price of coffee is normal, so the demand of coffee will be increasing, है ना? Because the price of coffee is nominal. Let's take an example with the amount. Price of tea is 10 rupees and price of coffee is 5 rupees. So we will be purchasing coffee. Why? Because it is cheap in price and it is giving us the same satisfaction. Okay, complementary goods क्या होता है? Complementary goods are those goods which can be used together or jointly. For example, bread butter. Okay, bread butter can be an example. Bread jam can be an example. Bread के साथ हम jam खाएंगे. मेरा preference है I'll eat bread and jam together. Your preference is you'll eat bread butter together. Okay, or else for an example, scooty and petrol. If price of petrol increases, demand for scooty will decrease. Okay, so this is complementary goods. So children, cross elasticity of demand basically shows the relationship between the substitute goods and complementary goods. Okay, next, what is the formula of this? It is EXY, percentage change in quantity demand of commodity X. एक कमोडिटी के क्वांटिटी डिमांड में चेंज होगा तो दूसरे कमोडिटी के प्राइस में चेंजेस आए बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी Y. ओके, Y, X एंड Y दो टाइप ऑफ गुड्स हमने बात किया है अभी. सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दो गुड्स के बीच में कुछ चेंजेस आएगा तो हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसे कंसिडर करेंगे. ओके, लेट्स बी मोर ब्रीफ इन दिस. टाइप्स क्या है? तीन टाइप्स है. पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कब होगा? जब गुड्स सब्स्टिट्यूट हो. जब सब्स्टिट्यूट गुड्स है, जैसे मैंने आपको टी कॉफी का एग्जांपल दिया, ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर प्राइस ऑफ वाई इंक्रीज हो रहा है, सॉरी यहां पे पी होगा, डी नहीं, प्राइस ऑफ वाई अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड ऑफ एक्स इंक्रीज होगा. अंडरस्टूड? वाई को अगर मैं टी लेती हूं, प्राइस अगर टी का बढ़ रहा है तो डिमांड हमारा कॉफी का बढ़ेगा. ओके, सो ये हमें बताएगा पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नेक्स्ट इज नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये किस केस में होगा? ये होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में लेट्स सपोज हमारा Y जो है ये हमारा है स्कूटी. ओके, और डिमांड जो है ये X जो है ये हमारा है पेट्रोल. ठीक है, लेट्स सपोज प्राइस ऑफ स्कूटी डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड फॉर पेट्रोल ऑटोमेटिक बढ़ेगा. प्राइस अगर स्कूटी का घट गया तो लोग क्या है, और स्कूटीज खरीदेंगे, है ना? तो क्या होगा, जब स्कूटी बहुत लोग खरीदेंगे तो ऑब्वियसली बिना पेट्रोल के तो गाड़ी चलेगा नहीं. तो सिमिलरली डिमांड ऑफ पेट्रोल भी इंक्रीज होगा क्योंकि प्राइस स्कूटी का गिर गया है तो प्राइस गिरने की वजह से स्कूटी और लोग परचेज कर रहे हैं. नेक्स्ट इज जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस केस में है? ये आपका ना ही सब्स्टिट्यूट है ना ही कॉम्प्लीमेंट्री है. ये एक दोनों को मिलाकर, जैसे दो अलग अलग टाइप ऑफ गुड्स है, उसे जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बोला जाएगा. जैसे एक के प्राइस के घटने या बढ़ने से दूसरे के डिमांड में कोई असर नहीं पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, टी का प्राइस घट गया है और इधर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है, तो क्या ये दोनों में कोई इंटर रिलेशन है? जब दोनों चीजों में कोई इंटर रिलेशन नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, वो आएगा जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में. यदि प्राइस बढ़े या घटे, वाई का मतलब कोई भी गुड ले ले, मैंने आपको टी का एग्जांपल दिया तो हम टी ही लेके चलते हैं, तो हमारे पेट्रोल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा.
हमारे एक्स कमोडिटी में जब कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है वाई कमोडिटी के प्राइस को के बढ़ने या घटने से, उसे हम कहते हैं जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट क्वेरी है प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, आप मेल भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को। आप भी प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।